So today we are going to start miscellaneous exercise and let's start with question number 1 जिसके लिए मैंने पूरा रेडी रखा हुआ है आपके लिए, है ना, so that we can done by this particular question quickly. So we just have to find the order and the degree if defined of a given differential equation. Simple. So if we look at this differential equation, what could be the possible order and the degree? So what is order? Order means the highest order derivative present in the given differential equation. So in this differential equation, the highest order derivative is d square y by dx square, and this is a second order derivative, so I will get 2, isn't it? Very good. लेकिन what will be the degree? तो कि डिग्री के लिए हमने ऐसे सीखा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए फॉर इट्स डेरिवेटिव्स, करेक्ट. तो यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड वंस वी गेट टू नो कि हाँ ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, सो द विच एवर इज द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका हाइएस्ट पावर दैट विल डिफाइन डिग्री. सो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस वन एंड इट्स पावर इज 1, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 1. Am I clear? है ना, it's very simple to understand. Second one, again what will be the highest order derivative in this one? तो क्या dy by dx, only dy by dx. So highest order derivative यानी कि इसका order 1 and the highest power of the highest order derivative. Why I said now more intentionally कि देखो dy by dx का क्यूब है और dy by dx का स्क्वायर है. Both of them are having the same order, but of same order the highest power which is 3, so इसकी डिग्री आएगी 3. Are you getting this? It's a very simple thing, है ना. And now look at this one, d raised to 4y upon dx raised to 4 minus sin d cube y by dx cube. Now this is in the form of angle of sine, so yes definitely order मिलेगा. कितना होगा order? कि भाई 4, क्योंकि highest order derivative in this differential equation is 4. Simple. And can we say this is a polynomial form? No, this is not a polynomial form. Why? Because this is sine of derivative. It should not be something like this. Hey, if it is sin x or sin y something like that, it's okay. dy by dx बाहर होता है या d cube y by dx cube बाहर होता तो चलता, लेकिन इस सिचुएशन में आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी. क्यों? Because this is not generating the form of a polynomial in derivative. If it can be a polynomial in derivative, then we can easily understand कि भाई हाँ यहाँ पे आपकी डिग्री आती. But if it is not a polynomial in derivative, then degree cannot be defined. Am I correct? चलो, please note down this first question and then we'll go for the question number 2. Now let's go for question number 2. Again, in this particular question, there are 4 sub questions, but we are not going to solve each one of them. फिलहाल दिया क्या हुआ पहले वो देखते हैं. फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो, वेरीफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. करेक्ट. तो हम सिंपल सा ये चेक करेंगे कि आपको जो सॉल्यूशन दिया है वो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं, वेरीफाई वाला, यानी कि एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन से. करेक्ट. सो लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ देम, जिसमें आई एम गोइंग टू टेक सेकेंड वन फॉर यू. मे बी ये आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, इसीलिए y इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू a cos x प्लस b sin x. मे बी, आई एम नॉट श्योर कि ये आपको डिफिकल्ट लग ही सकता है, बट लेट मी गिव इट अ ट्राई, है ना. तो पता कैसे चलेगा कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? तो वी कैन ऑब्जर्व देयर आर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट, प्लस आपको बताई है कि करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना. लेट मी राइट दैट वन ऑल्सो, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बताना है. सिंपल. सो विल डायरेक्टली स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग 1 by 1, है ना. 2 बार करना है, तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो कितना आएगा? dy by dx equals to e raised to x as it is, very obvious, minus a sin x plus b cos x plus a cos x plus b sin x as it is and e raised to x का derivative e raised to x. Now you can do by 2 ways. Either you can write this as a y itself, है ना,
या फिर आप इसको e रेज टू एक्स कॉमन निकाल के साइन और कॉस वाली टर्म कंबाइन कर लो. एनी हाउ यू वांट यू कैन डू. लेट मी पुट दिस एज अ y एंड देन विल सी क्या होता है. ये y डैश, ये e रेज टू एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस y. अगेन डिफरेंशिएट y डबल डैश एज इट इज माइनस a कॉस एक्स. यहां पे हो जाएगा अब माइनस, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, प्लस दिस रिमेन एज इट इज माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स. e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स और y का y डैश. सिंपल. अगेन इफ यू ऑब्जर्व दिस y डैश will come over here, so y डबल डैश इक्वल्स टू. ध्यान से थोड़ा इजी वे में लिखने की ट्राई करेंगे कि क्या हो रहा है. अच्छा देखो, जब वेरिफिकेशन करते हैं ना तो समटाइम्स यू नीड टू थिंक समथिंग लाइक दिस कि वेरीफाई करने के लिए ये कर सकते हो कि भाई y डबल डैश मिल गया है, y डैश मिल गया है. यू कैन सब्स्टिट्यूट इन द LHS ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो एक काम करते हैं, उसमें रख देते हैं, जितना है उतना वैसे के वैसा ही. सो LHS इज डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y. ये हमारा LHS. पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर. ये पूरी वैल्यू क्या है, e रेज टू एक्स. एक काम करते हैं, इसमें से e रेज टू एक्स कॉमन निकाल देते हैं. यहां से साइन वाली टर्म कंबाइन करेंगे, कॉस वाली टर्म कंबाइन करेंगे. तो कॉस वाली अगर टर्म कंबाइन कर रहे हैं तो इट विल बी b माइनस a कॉस एक्स. दोनों नेगेटिव है, माइनस कॉमन निकाल दो तो a प्लस बी साइन एक्स प्लस y डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y. अच्छा ये सब थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी, इस तरह से नहीं करना चाहिए था. लेट मी फिनिश इन द डिफरेंट वे ओनली. ऐसा नहीं करते, LHS में रखने जाएंगे, हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट फील हो जाएगा, है ना. क्या करेंगे तो देखो ध्यान से मैं किस तरह से पुट कर रहा हूं. कैन यू ऑब्जर्व दिस इज ओवर हियर. ये पूरे के पूरी इक्वेशन सेम है, e रेज टू एक्स इंटू माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स. आई कैन रिप्लेस दिस एज समथिंग लाइक दिस, y डबल डैश. यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया, e रेज टू एक्स a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स प्लस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y डैश माइनस y प्लस y डैश. एंड इसकी जगह पे लिख सकते हैं y. सो y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस y प्लस y डैश माइनस y प्लस y डैश. सब लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो y डबल डैश, ये पॉजिटिव होके नेगेटिव 2y डैश और वो पॉजिटिव होके 2y इक्वल्स टू 0. दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. करेक्ट. लेकिन समटाइम्स यू पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट. जब वेरीफाई वाले प्रॉब्लम होते हैं ना तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मैंने यहां पे किया ना, यू अवॉइड दिस एंड ट्राई टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ x ओनली. और फिर जो भी आपको y डैश y डबल डैश वगैरह मिले उसे डायरेक्टली आप LHS में रख दो ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए वेरीफाई करना है. करेक्ट. चलो उसी तरह से कराने के लिए लेट मी गिव यू वन मोर प्रॉब्लम. इसको मैं फिलहाल रफ कर देता हूं. लेट मी टेक वन अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. लेट्स से फोर्थ वन. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर इंटू लॉग y. ये चेक करना है कि सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई. इसका आंसर 0 लाने के लिए, है ना. सो देखो y की वैल्यू तो हमें यहां से मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा dy बाई डी एक्स. सो डेरिवेट करना पड़ेगा. करेक्ट. सो इफ आई स्टार्ट डेरिवेटिंग, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर का 2y इंटू लॉग y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y स्क्वायर एज इट इज लॉग y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स. इस तरह से. करेक्ट. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये y और एक ये y कैंसिल हो गया. सो आई गॉट x इक्वल्स टू 2y log y प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाई
2y log y प्लस y, और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस LHS में रख दो, तो कितना आएगा? तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप रखोगे तो x डिवाइडेड बाई 2y log y प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब ये तो देख के हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो देखो एक और चीज आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? तो क्या पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसे इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि y सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, y रखने जाओगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो इट्स बेटर टू पुट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? तो क्या ये है 2y स्क्वायर log y प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2y log y प्लस y। अब चाहो तो इसमें से y कॉमन निकाल दो, एक काम करते हैं हम y कॉमन निकाल देते हैं, सो प्लस 1 और y बाहर माइनस एक्स वाई। अब ऊपर से वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा। लेट मी राइट 2 स्टेप्स ओवर हियर, 2 स्टेप से मैक्सिमम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कुछ बचा नहीं है अब इसमें, है ना। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना बचेगा? 2 log y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इंटू 2 log y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। 2 log y, एक एक y कट, तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका RHS। तो वेरीफाई वाले प्रॉब्लम आप इस तरह से कर सकते हो कि दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एज मेनी एज टाइम वी नीड एज पर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, उसके करस्पॉन्डिंगली दी होगी, उतने ऑर्डर तक सॉल्व करो और उतने ऑर्डर की सारी वैल्यूज जो है वो आपके LHS में रख दो, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर तक ही था तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, y की वैल्यू करनी चाहिए थी लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था तो हमने एक्स स्क्वायर रख दिया, विच हेल्प अस टू गेट टू द वैल्यू 0 विच इज अवर RHS ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और ये जो पहला वाला प्रॉब्लम यानी कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी तरह से भी कर सकते हो। तो फाइनली इक्वेशन तो वही मिली। सो डेफिनेटली ये जो अगर इक्वेशन बनी है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दो तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा हो गया कि हमने दिए हुए फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म कर ली। बट इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों मेथड में, है ना। एक मेथड में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो सॉल्यूशन है कि नहीं वो वेरीफाई करते हैं, है ना, और दूसरी मेथड में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो कभी कभार ऐसा थोड़ा हो जाता है, बट दिस इज नॉट रॉन्ग, डोंट वरी, ये गलत नहीं है। आपको अगर ये इक्वेशन मिल गई इसका मतलब कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसी का सॉल्यूशन होगा, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। दैट इज वेरी मच क्लियर। करेक्ट। सो बोथ द मेथड्स आर विथ यू, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बोथ ऑफ देम इज करेक्ट, नो इश्यू एट ऑल। प्लीज टेक नोट डाउन ऑफ दिस बोथ प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। गुड थिंग इज के ऑलरेडी इक्वेशन प्रोवाइड की है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय x माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ आई कैन सी a स्क्वायर, अगर इसे एक्सपांड करूंगा तो a स्क्वायर कम हो जाएगा, एक एटलीस्ट a स्क्वायर कम होगा तो इतना तो फायदा होगा ना सब्सटीट्यूट करते वक्त a की वैल्यू। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। So I got 2ax equals to x square plus 2y square. Let me call this as equation number 1, है ना। और जैसे ही आप लोग ये इक्वेशन देख रहे हो तो इस इक्वेशन में एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है a. That means we have to remove somehow that arbitrary constant by differentiating it. तो क्या कर देते हैं, differentiating equation 1 with respect to x. यहां से कितना बचेगा 2a, सीधी सी बात है ना। यहां से एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2 इंटू 2 4y हो जाएगा। वाई स्क्वायर के लिए 2 इंटू 2 4y dy बाई dx। सब में से 2 कॉमन निकल तो रहा है लेकिन मुझे निकालना नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट आउट। क्यों? तो आई कैन रिप्लेस द होल वैल्यू ऑफ 2a ओवर हियर, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और सब्सटीट्यूट कर दो 1 में। सब्सटीट्यूट 2a
फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या फिर आप यहां से x डिवाइड में लेके इक्वेट कर दो, वन एंड ऑल सब सेम है। तो ओके भाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इंटू वाई डैश इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, सो 2x स्क्वायर प्लस 4xy वाई डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। सो 4xy वाई डैश, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप dy बाई dx के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इट विल कम आउट एज 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4xy। वेरी सिंपल है कि नहीं? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। देखो, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो डोंट बी इन द माइंडसेट के इसी तरह से हो सकता है, देयर इज नो अनदर ऑप्शन, ऐसा नहीं है। यू कैन गो बाई एनी हाउ यू लाइक, है ना, आपको जैसे पसंद है आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि यू कैन डिवाइड इट विथ 2 कॉमन निकालो, फिर a की वैल्यू पुट करो, या फिर यहां से x से डिवाइड कर दो, है ना, तो 2a इक्वल्स टू समथिंग आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई एक्स, फिर इक्वेट कर दो, है ना। आर यू गेटिंग द आइडिया? तो इट इज टोटली अप टू अस। अच्छा, कोई ऐसा भी सोचेगा कि यहाँ पे 2ax है ना, तो इसको x से पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वेट कर दो, तो कि x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4xy डिवाइड होगा, वही सब बनेगा, होना कुछ नहीं है। लास्ट में फाइनली इक्वेशन ऐसी आनी है, वो चेंज नहीं होनी। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस में कि आप जैसे चाहो करो, फाइनली आंसर राइट आना चाहिए, है ना, और कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। दैट्स इट। लेट्स हैव अ लुक एट फोर्थ वन। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। जहां पे c इज अ पैरामीटर ऐसा बोला, यानी कि कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, c को हमें और कुछ ज्यादा नहीं डिफिकल्ट सोचना है, बट एज अ कांस्टेंट। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो इसका सॉल्यूशन है। किसका? इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके प्रूव करेंगे कि हाँ वो उसका सॉल्यूशन है? तो क्या भाई, पहले इस इक्वेशन को हमें सोचना पड़ेगा कि करेंगे कैसे, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर। तो क्या देखो, मुझे कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि पावर 3, 1 प्लस 2 3, और यहां पे मैंने गलत लिखा है, दिस इज ऑल्सो 3। क्वेश्चन ने दिया हुआ है ऐसा नहीं कि एडजस्ट कर रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो वो भी 3। तो होमोजीनियस इज क्वाइट बेटर ऑप्शन, है ना। अच्छा, अब होमोजीनियस में हमने सोचा तो उसके लिए dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स, dy के साथ वाला जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एंड वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। इसका मतलब न्यूमरेटर में से कितना कॉमन निकालेंगे? एक्स क्यूब, तो 1 माइनस 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सेम चीज नीचे भी तो करनी पड़ेगी ना, एक्स क्यूब कॉमन, तो वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स वाई बाई एक्स। सो दिस 2 गेट कैंसल्ड एंड वी लेफ्ट विथ 1 माइनस 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 3y बाई एक्स। ये मिल गया हमें क्या? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही ये पता चलता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें लेट करना पड़ता है y इक्वल्स टू vx और y बाई एक्स इक्वल्स टू v, जो भी आपको ठीक लगे वो। सो इट विल बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई dx। सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, जिससे ये बनेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v क्यूब माइनस 3v। ये v तो पहले उधर ले जाना पड़ेगा,
तो x dv बाई डी एक्स 1 माइनस 3v स्क्वायर। चलो मैं यहीं से डायरेक्ट ले लेता हूं, ये रहा माइनस v, करेक्ट। अब ये माइनस v के हिसाब से अगर एलसीएम ले तो इट विल बी v रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v क्यूब माइनस 3v, करेक्ट। यहां तक समझ में आया है ना। सो फर्दर यहां से आगे क्या होगा, तो कि इट विल बिकम x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 3v स्क्वायर गॉट कैंसल्ड है ना, तो ऊपर बचा 1 माइनस वी रेज टू 4 डिवाइड में स्टिल लेट्स कीप इट लाइक दिस ओनली v क्यूब माइनस 3v, तो ये हो गया v क्यूब माइनस 3v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी रेज टू 4 dv इज इक्वल्स टू dx बाई एक्स। ये आ गया आपका vs फॉर्म, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन, करेक्ट। सो इंटीग्रल v क्यूब माइनस 3v 1 माइनस वी रेज टू 4 dv इज इक्वल्स टू dx बाई एक्स। फिलहाल मैं c नहीं लिख रहा हूं क्योंकि dx बाई एक्स का लॉग है, यहां पे थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं क्या आ रहा है, उसके हिसाब से फिर लिख देंगे। तो वी कैन नॉट सॉल्व दिस डायरेक्टली, पहला तो क्योंकि v रेज टू 4 का डेरिवेटिव v क्यूब होता है, लेकिन फिर 3v नहीं हो पाएगा, तो लेट्स स्प्लिट देम आउट। तो इट विल बी v क्यूब माइनस वी रेज टू 4 dv माइनस 3 कॉन्स्टेंट v अपॉन 1 माइनस वी रेज टू 4 dv इक्वल्स टू dx बाई एक्स। अब चाहो तो उसको log x प्लस log c एट अ टाइम लिख सकते हो, बट लेट्स डू द इंटीग्रेशन लिटिल बिट लेटर ऑन, करेक्ट। अब यहां से मैं आपको हिंट दे दूंगा, I will not solve it, I will give you hint. Let's call this as I1 and let's call this as I2. तो I1 के लिए हिंट क्या होगी, तो के 1 माइनस वी रेज टू 4 को t ले लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा I1 का। I2 के लिए आपको क्या करना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब t तो नहीं लेंगे, लेट्स से p ले लेते हैं, v स्क्वायर की जगह पे क्या ले लेते हैं, p, एंड देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड गेट दिस इंटीग्रल डन प्रॉपरली, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, है ना। सो नोट डाउन दिस वन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई विल ट्राई टू शो यू द मेथड, कि कौन सी मेथड से होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, सॉल्विंग पार्ट विल बी योर्स, करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus root 1 minus y square divided by 1 minus x square equals to 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल है। Now by which method we can find the solution or general solution of this differential equation? तो क्या बहुत सिंपल सा काम है, इसमें इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ध्यान से देखो। तो dy by dx equals to माइनस, लेट्स स्प्लिट द रूट एज वेल, है ना, रूट ए अपॉन रूट ए बाई बी जो है उसे रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। तो इट विल बी 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एज सुन एज यू डू समथिंग लाइक दिस ना, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब तो एक ही मेथड है जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि dy डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से इंटीग्रेशन आपका काम है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो और भी इजी है, सेम फॉर्मूला है दोनों साइड पे, है ना, समथिंग रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने सीखा हुआ है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to y square plus y plus 1 divided by x square plus x plus 1, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज गिवन बाय। अब देखो इसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कुछ ऐसे लाना है, x प्लस वाई प्लस 1, करेक्ट, इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ये हमें एज अ सॉल्यूशन लाना है, जिसमें a इज अ पैरामीटर यानी कि कांस्टेंट। सिंपल।
अब देखो ये प्रॉब्लम में ना ऐसे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने में आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्राई करते हैं डिटेल में जाने की। अगर ऐसा लगेगा कि यहां से आपसे हो सकता है, आई विल लीव इट फॉर यू, डोंट वरी। तो कि यहां पे भी वही करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर पाई प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो ये सीधा सीधा हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वेरिएबल सेपरेबल में ही है, इजंट इट? इसका इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन विल लुक लाइक दिस, dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। मैं एक काम कर रहा हूं, ये माइनस डी एक्स है ना, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं। जस्ट समझना क्यों ऐसा कर रहा हूं, एक मेथड है, थोड़ी सी आपके लिए काम आएगा, इस प्रॉब्लम में ही करना है। दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपने इधर ले लिया तो वो 0 हो जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। अब देखो दोनों में वापस से इंटीग्रल सेम मेथड से हो सकता है, जैसे यहां करेंगे वैसे ही वहां, सिर्फ x और y का डिफरेंस है, करेक्ट? तो कि यहां कैसे होगा, तो क्या अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है तो हमें सेट करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर सेट करना है, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई दैट। तो लेट्स से डी वाई स्क्वायर प्लस वाई, परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से ये 1/4 आएगा और स्क्वायर में बचेगा 3/4। सेम थिंग ऐसा यहां पे भी होगा, इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। मैंने कहा दोनों में सेम ही होना है, करेक्ट? जिसकी वजह से आपको मिलेगा dy डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब दोनों एक सेम जैसे दिख रहे हैं, बस x और y में ही चल रहा है कब से, तो फॉर्मूला भी सेम जैसी ही लगेगी यहाँ पे, विच इज अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/a है ना। सो 1/a यानी कि √3/2 tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन √3/2। सेम थिंग विल अप्लाई ओवर हियर, 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 that will be equals to 0। सिंपल। अब दोनों इक्वेशन में √3/2 सेम है। देखो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, लेकिन हाँ एक चीज हम इसमें और भूल गए कि जब हम इंटीग्रल करते हैं तो प्लस c आता है ना। तो एक काम करते हैं ना कि जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे जीरोस को रिप्लेस करके लिख देते हैं प्लस सी। अब प्लस सी लिखो या माइनस सी लिखो, इट डजंट मैटर, सिंपल। सो लेट से यहाँ पे सी लिख दिया हमने, ये सारे, सीधी बात है। अब √3/2 देखो दोनों के डिनोमिनेटर में, वो हो जाएगा 2/√3। अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, tan इनवर्स, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा ऊपर जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा √3/2c। इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बनी जिसमें कांस्टेंट c है। अब दोनों tan इनवर्स है ना, तो मैं यहां से आपके लिए हिंट में ये छोड़ रहा हूं, ये लाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डोंट वरी, बट हिंट में मैं आपके लिए ऐसा यहां से छोड़ रहा हूं कि अप्लाई tan इनवर्स a या x बोल दो आप, जो भी बोलना है, प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वाली फॉर्मूला। दोनों tan इनवर्स में यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, करेक्ट? सिंप्लीफाई करना, √3/2c जो है उसको आप सिंप्लीफाई करके एक अलग कांस्टेंट दे दो, लेट्स से b, है ना। फिर उसको सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला रख के, तो एक और चीज एलिमेंट आपकी ऐड हो जाएगी उस b वाले कांस्टेंट में, और उसको रिप्लेस करना, देखना कि वो फाइनली a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि a की वैल्यू क्या है, जस्ट इतना बोला है कि a इज अ पैरामीटर, तो वो आपको एज अ पैरामीटर यानी कि कांस्टेंट लाके देना है, सिंपल। फिलहाल c पे है हम लोग, उसके बाद देखो शायद आपको ऐसा भी फील हो कि नहीं भाई यहाँ पे इसके बाद वाले में b या a डायरेक्ट आ जाएगा, तो यू कैन पुट a एज वेल, है ना। अब बाई चांस आपको पता नहीं चल रहा होता, जस्ट फॉर दी अनसर्टेनिटी इन द एग्जाम,
तो आप a लिख दो चलेगा, फिर जब ऐसा लगे कि और कुछ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो पुट इट a डैश और फिर लास्ट में a कर देना, बिकॉज लास्ट फाइनल आंसर शुड बी इन a ओनली। उसके पहले आप a डैश लिखो, a डबल डैश लिखो, a1 लिखो, जो करना है करो, जितने कॉन्स्टेंट्स ऐड करने करो, लेकिन लास्ट में a पे आ जाना चाहिए। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला से ट्राई करना है, इजी है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जनरल सॉल्यूशन वगैरह ही है, पर्टिकुलर पे जाना नहीं है। तो आराम से आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। करेक्ट? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन which is question number 8. Find the equation of the curve passing through the point 0, pi by 4. So it is a type of a problem जिसमें आपको particular solution find करना है, whose differential equation is sin x cos y dx, sin x cos y dx plus cos x sin y dy. And that will be equals to 0. करेक्ट? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है और उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी, क्योंकि 0, पाई बाय 4 से कर्व आपका पास होगा। अब ये कैसे होगा? तो के देखो, आगे भी मैंने कहा था कि दो तरीके से आप इस टाइप के प्रॉब्लम में सोच सकते हो। पहला तो कि इसे आप डिवाइड कर दो cos x cos y से, या फिर दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो sin x cos y dx इक्वल्स टू माइनस cos x sin y dy। y वाला साथ में रखो, x वाला, तो ये cos y उधर और ये cos x इधर, तो sin by cos 10x dx, ये माइनस इधर वापस आके प्लस 10y dy इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। करेक्ट? अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड वेरिएबल सेपरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा? तो इंटीग्रेटिंग 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y dy। आई नो द फॉर्मूलाज ऑफ देम इज इन लॉग, तो मैं यहाँ पे log c लिख देता हूँ। 10x की फॉर्मूला तो log में ना, log sec x sin by cos, isn't it? तो ये हो जाएगा log sec x प्लस log sec y इक्वल्स टू log c। तो ये हो जाएगा sec x इंटू sec y equals to log c. Log can be removed easily, so we got sec x into sec y equals to c. This is our general. लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कहां से पास हो रहा है? एट 0, पाई बाय 4, दैट इज x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई बाय 4। तो sec 0 1 एंड sec पाई बाय 4 √2 इक्वल्स टू c, यानी कि c की वैल्यू मिल गई √2, जिसे आप जनरल सॉल्यूशन में रख दो तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा विच इज sec x इंटू sec y इक्वल्स टू √2। अब देखो, अब चाहो तो इसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि दिस sec x विल गो ऑन द अदर साइड, है ना, तो डिवाइड में होगा, ऊपर जाएगा तो cos x, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि sec y इक्वल्स टू √2 cos x, या फिर आप इसे भी रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लो cos y, तो cos y इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 cos x या 1 अपॉन √2 sec x, जैसे आपको प्रीफर हो। इफ यू वांट यू कैन एंड हियर एज वेल, sec x इंटू sec y इक्वल्स टू √2। देयर इज नो अननेसेसरी मीनिंग, बट हाँ ट्राई किया मैंने यहाँ पे कि मैं y वाले को साइड पे रख के बाकी सब राइट हैंड साइड पे लेता हूँ, है ना। सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ आपको दिखे, इसकी वजह से वो मैंने इस साइड ले लिया और कुछ नया नहीं किया है, सिंपल। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। Okay, what do we have? So again we have to find the particular solution of the differential equation. Now this differential equation is quite a nice one. 1 plus e raised to 2x dy plus 1 plus y square e raised to x dx equals to 0. हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस के गिवन दैट बोला होगा y 1 है x 0 है, लेकिन वो आप पे मैं छोड़ने वाला हूं। मैं यहाँ पे बस मेरा इतना टारगेट है
कि आपको ये बताऊं कि ये प्रॉब्लम होगा कैसे, बाय विच मेथड वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कि भाई x वाले के साथ y है, y वाली टर्म के साथ x है और इक्वल्स टू 0 है, तो कुछ ऐसा ही हुआ ना, एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई, तो इक्वल्स टू 0 तो राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में थोड़ा सा चांस रहेगा हमारा 1 प्लस ई रेस टू 2x dx सॉरी dy माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू x dx, करेक्ट। सो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू dy बाई dx। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx नहीं करना ना, हमें तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रखना था। तो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू 2x dx। ये डिनोमिनेटर में, ये उधर डिनोमिनेटर में हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल के बाद इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी डिफिकल्टी है। ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स y। यहाँ पे करने के लिए आपको थोड़ा सा लेट की जरूरत पड़ेगी, बट मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ कि माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू एक्स dx। हिंट दे देता हूँ कि भाई लेट कर लेना ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू टी, इससे आपका इंटीग्रल इजी हो जाएगा। अब ये 10 में है, ये कुछ और फॉर्म में आएगा, जो भी फॉर्म में आए हमें देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कांस्टेंट ले लो। चलो अभी फिलहाल सी रखते हैं। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी, तो मैं इसे आई बोल देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये भी तो tan इनवर्स में ही आया है, tan इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स। दोनों tan इनवर्स में है, ब्रिंग देम टुगेदर, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू सी, करेक्ट। लेकिन इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, इतना ही नहीं करना है। हाँ, आप चाहो तो इसमें भी वो वाली फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। सो a प्लस बी अपॉन मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बट फिलहाल जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि व्हेन y इक्वल्स टू, मतलब y की वैल्यू 1 लेनी है और x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1 यानी कि पाई बाई 4, x की वैल्यू 0 यानी कि ये हो जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 भी कब होता है, पाई बाई 4 पे। c की वैल्यू पाई बाई 2 मिल जाएगी। यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व इट, है ना। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन समथिंग लाइक दिस, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e रेस टू x इक्वल्स टू पाई बाई 2। सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस टू प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन में ऐसा बोला है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ व्हेन यू लुक एट सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके दिमाग में एक डेफिनेटली चीज आई होगी कि वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एम आई राइट और नॉट, है ना। अब जैसे हमने बोल दिया होमोजीनियस से है, तो लेट्स ट्राई, है ना। एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि x बाई वाई है, तो हमें फंक्शन ऑफ x बाई वाई जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा x रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई। एंड एज पर कंसेप्ट x बाई वाई जनरेट करना होता है, तो हमें क्या कॉमन निकालना पड़ता है, y। अब प्रॉब्लम यह है कि सपोज मान लो आपने y स्क्वायर कॉमन निकाला, सपोज आपने y स्क्वायर कॉमन निकाला, तो y स्क्वायर बाहर, यहाँ पे x के डिवाइड में y स्क्वायर ई रेस टू एक्स बाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई। एक एक y तो चलो ठीक है, कट हो भी गया मान लिया, लेकिन ऊपर एक y बच गया ना। इट शुड बी ऑफ ऑर्डर डिग्री 0, सॉरी नॉट ऑर्डर, डिग्री 0 मिलनी चाहिए ना। हमने तो ऐसा सीखा है कि भाई जब आप इस तरह से बाहर निकलते हो तो ऊपर नीचे पूरा कट हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे कट हो रहा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। ये होमोजीनियस से सॉल्व करना हमारे लिए बिट डिफिकल्ट होगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि देखो यहाँ पे भी एक तो प्रॉब्लम है, x बाई वाई चाहिए, तो ये y अंदर दे दो, मे बी। तो अगर y अंदर दोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये x बाई वाई रेस टू एक्स बाई वाई होगा, लेकिन प्लस y आ जाएगा, जो नहीं चलेगा। y आ गया ना, y चले, क्वेश्चन ही नहीं है, y जो है वो डिनोमिनेटर में ही जाना चाहिए, डिवाइड में x बाई वाई, बट यहाँ पे y आ जाएगा, तो वापस से वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसे करेंगे कैसे,
अगर इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर इसे सॉल्व करना कैसे होगा? तो क्या ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से करेंगे, y e रेज टू एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स e रेज टू एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रिंग एक्स e रेज टू एक्स बाई वाई टर्म टूगेदर, तो e रेज टू एक्स बाई वाई कॉमन निकल गया, ये हो गया y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर and it becomes e raised to x by y dx by dy minus x divided by y square equals to 1, जिसे आप इक्वेशन नंबर 1 2 जो बोलना है बोल सकते हो। 1 ऊपर दे रहे हो तो इसे 2 या फिर इसे 1 दे दो। लेकिन इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कहां सॉल्व हुई? ये तो और डिफिकल्टी में आ गए। तो कि अब एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये और कुछ नहीं है, x बाई वाई का डेरिवेटिव है। चेक करो, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव, y एज इट इज, x का डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स एज इट इज, y का 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो करना क्या है, तो क्या लेट्स से e रेज टू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू टी, लेट्स से e रेज टू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू टी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। तो e रेज टू एक्स बाई वाई एज इट इज और d बाई डी वाई ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल्स टू डी टी बाई डी वाई। सिंपल, चलो कोई बात नहीं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो कि भाई e रेज टू एक्स बाई वाई एज इट इज, y एज इट इज, इसका डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स एज इट इज, y का 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वाई। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, e रेज टू एक्स बाई वाई, वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? डी टी बाई डी वाई इक्वल्स टू 1, यानी कि डी टी इक्वल्स टू डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दो, तो t इक्वल्स टू वाई प्लस सी, टी की वैल्यू क्या थी? ये वाली, e रेज टू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए मैंने इसको आपके लिए इंपॉर्टेंट में लिखा है। क्यों? क्योंकि हम जो 3 मेथड सॉल्व कर रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं लग रही है, हो तो रहा है वेरिएबल सेपरेबल, ये रहा है ना, लुक्स लाइक होमोजीनियस प्रॉब्लम, लेकिन वो डायरेक्टली होमोजीनियस में नहीं हो रहा है, और उसको हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि जिससे वो वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, इंटीग्रेट हो गया, एंड वी गॉट द सॉल्यूशन, है ना। सो एवरी प्रॉब्लम इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो कुछ ना कुछ इसमें अलग तरीके से कुछ हटके दिया होता है, तभी एक्सरसाइज एक एट द एंड ऑफ द चैप्टर आती है, करेक्ट। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को प्लीज ध्यान से सॉल्व करना, है ना, एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।